Smoking causes cancer. Smoking kills. புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும், உயிரை கொல்லும். Liquor drinking is injurious to health. மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். Encoded by big4movies.net. இயற்கை இந்த உலகத்துல எல்லா உயிரினங்களும் வாழ்வதற்காக இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய வரம். பறந்து விரிந்து கிடக்கிற இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இந்த காட்டையும் மலையும் மட்டுமே நம்பி தலைமுறையா பழங்குடி மக்கள் வாழ்ந்துட்டு வராங்க. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு மரம் செடி கொடியிலையும் தன்னோட மூதாதையர்கள் வாழ்ந்துட்டு வர்றதா அவங்க நம்புறாங்க. காட்டுக்குள்ள வாழ்ற இவங்க விலங்குகளை கூட தன்னோட ஒட்டு வரவா தான் நினைக்கிறாங்க. இந்த காடுதான் இந்த மக்களுடைய சொத்து, சுகம், வாழ்வாதாரம் எல்லாமே. இந்த மாதிரியான மக்கள் காட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுனாலதான் இன்னும் காடுகள் பாதுகாப்பா இருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த பகுதியோட பேருதான் கடம்பவனம்.
அசத்திட்டியாப்பா அசத்திட்டியா. தொங்கு பாறையில இறங்கி தேர்ந்தெடுத்த ஆம்பளடா நம்ம கடமை. தந்தானே ஏ தந்தானே ஏ தந்தான 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 நானே ஏ தந்தான 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 தந்தானே ஏ தந்தான நானே ஏ தந்தான நானே ஏ தந்தான 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 நா ஏ தந்தான 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 நானே. புற்றி மலையழகு ஆதாரமா உள்ளவர இந்த ஊரு உலகமே செழிச்சு வாழ இல்ல கொர. பச்சை செடி கொடிக பழகி பேசி அள்ளி தர நாங்க கைய ஏந்தி தான் பொழைக்க மாட்டோம் போகும் வர. காசு பணம் சொத்து சொகம் போயிடும் தொலைஞ்சிதான் நம்ம காக்கும் இந்த காட்ட நம்பி வாழ்வோமே துணிஞ்சுதான். காசு பணம் சொத்து சொகம் போயிடும் தொலைஞ்சுதான் நம்ம காக்கும் இந்த காட்ட நம்பி வாழ்வோமே துணிஞ்சுதான். மலையழகு ஆதாரமா உள்ளவர இந்த ஊரு உலகமே செழிச்சு வாழ இல்ல கொர. பாம்பு தெளு பள்ளி கூட பாசங்காட்டி தள்ளி போட கூடி வாழும் இந்த வாழ்வ கொண்டாடுவோம். குறை இல்லாமலே நாளும் பொழுதும் பண்பாடுவோம். கருவுல நம்ம சம்பந்தவ இறக்கி விடுறா வெளியில உசுரது போகும் வரையில தாங்குது காடு மடியில. நீரில் தாவும் மீன ஒன்னா சேர்ந்து கொம்பு தேன பங்கு போடும் எங்க கூட்டம் ஜோரானது. வழி மாறாமல போகும் திசையோ நேரானது. இருப்பதையெல்லாம் கொடுக்கிற காடா இறைவன் இருக்கிறா. அடிக்கிற காத்துல அசஞ்சுதான் அழகாபனும் சிரிக்கிறா. காடு காயாதாரு பெத வைக்காம வெள்ளாம பண்ணாம திம்போமே சோறு. மலை தாயோட அன்பால எல்லாமே கை சேரும் பாரு. देखा न करम्मा कितनी बेरहमी से मारकर सिर्फ नाखून और खाल के लिए इस शेर को कैसे लटका कर रखा है. इससे अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे दादा परदादाओं ने जो जानवर देखे उनमें से आधे हमारे पिताओं ने नहीं देखे. हमारे पिताओं ने जो जानवर देखे वो हमने नहीं देखे. आज जो जानवर हम देख रहे हैं कल को हमारी आने वाली पीढ़ी शायद ही उन्हें देख पाएगी. सिर्फ लालच व्यापार के लिए पेड़ काटकर लकड़ी ले जाते हैं, हाथी को मारकर उसके दांत ले जाते हैं. हर कोई शहर से आकर जंगल से पैसा सारा जंगल बेच खाएंगे तो भी इन्हें कम पड़ेगा. जिसने ये किया है वो बस हाथ लग जाए उसकी भी यही हालत है. क्यों भाई
पिछली बार जंगल में तो पूरे 25 शहरों की गिनती हुई थी, उसमें से सिर्फ एक ही तुम्हारी आंखों को दिखा। क्या करे सर, गांव वालों को अब हम पर पूरी तरह से शक हो चुका है। कोई ना कोई वहाँ आ ही जाता है, अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो शेर के साथ उसे भी ठोक डालो। तुम जंगल में चाहे शेर मारो या इंसान, पूछताछ करने मैं ही आऊंगा। अगली बार अगर तुम दोनों गांव वालों से डरे तो मैं तुम्हारा ही शिकार कर दूंगा। ऐसे निचोड़ते तो रात हो जाएगी भाई। शहद मिले या ना मिले देखकर ही मेरा तो पेट भर गया। अरे यार थोड़ा जल्दी हाथ चलाना, घर पर बहुत सारा काम है। ये क्या है मुकेश भाई, जब देखो घर में काम पड़ा है बोलते हो। ऐसा कौन सा काम है? तू क्या करेगा जानकर? अरे बाकी के लोग क्या रहेंगे? बाबा, माँ को सुबह से उल्टी हो रही है इसलिए आपको घर पे बुलाया। सुन लिया ना? अरे शेर ने क्या कहा सुन लिया? अब भी बताना पड़ेगा घर में क्या काम है, हैं? बोल बेटा। इस बार मुझे एक नन्ही परी चाहिए, बोल देता हूँ। मिलेगी यार, इस बार ही क्या, तुझे अगली बार भी नन्ही पर ही मिलेगी। जी बहन जी, पूरे गांव भर में अपनी जाति के जितने भी गुण हैं, बस वो सब तुम्हारे लड़के में ही भरे हुए हैं। ऊपर पहाड़ों से अगर शहद लाना हो या अपनी मर्दानगी से मोहित करना हो तो तुम्हारा बेटा शेर है। मैं कई बार जंगल शहद निकालने गया हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारे पिताजी के बाद कोई भी पहाड़ में उतरकर शहद नहीं निकाल पाया। उनके बाद तुम्हारा बेटा ही ये काम कर पाया है। कुल देवी की कसम खाकर बोलता हूँ, एक पल को तो लगा जैसे सामने तुम्हारे पिताजी को देख रहा हूँ। बोलता है उसे उसमें उसका बाप दिखता है। पूरी टोली में बस वही एक मर्द है। क्यों, हमने कभी शहद नहीं निकाला क्या? फिर से निकाल के निकालो सबको। कौन सा तीर मार लिया उसने? मुट्ठी भर शहद निकाल लिया तो इतनी बड़ाई कर रहे हैं। अगर थोड़ा ज्यादा लिया था तो शहद के साथ उसे भी चाट गए होते। क्यों भाई, अपने घर में परेशानियाँ कम है क्या? उसकी बातें करो ना, फालतू की बात मत करो। सबसे बड़ी परेशानी तो तुम्हें। घर की बेटी जवान हुए 4 साल हो गए हैं, शादी करा देते तो अब तक उसके 10 बच्चे होते। तुम दोनों लड़की के कोई गुण नहीं है इसमें, दिन रात बच्चों के साथ जंगल में भागती रहती है। कदमा जब शहद बांटता है तो वहाँ मच जाया है, फिर भी तू वहाँ गई तो गई, उस पर लाइन भी मारती है। ए जो चलना, वो हथियार दे दो मुझे। आगे से कभी कदमा के आसपास भी दिखी ना, इसी से मार डालोगे तुझे। देखना, तेरे भैया को जरूर बताएंगी। लगता है ये पत्तों का असर उसका भाई मुझे ऐसे देखता है जैसे कच्चा जमाना है। शादी तो दूर की बात है। क्या मुकेश भाई, घबरा गए क्या? सूखा नारियल है और
किसको बोल रहा है तू? मुझे डर लगता है क्या? बोल दो। अरे, एक बाप का बेटा है तो अगर फिर Very nice. Let's get going. Thank you, sir. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோட சவுத் ஜோன்ல இருக்கிற இந்த ஏரியா பேரு கடம்பவனம். இந்த ஏரியாவை சுத்தி एक साल तक रिसर्च करने पर हमारी टीम को ये पता चला है कि ईस्ट के पुलिवराय पहाड़ी से वेस्ट के कड़ू पहाड़ी तक, नॉर्थ के लेट्टी गुरुजल पहाड़ी से लेकर साउथ சிமெண்ட் தயாரிக்க தேவையான லைம் ஸ்டோன்ஸ் கொட்டி கிடக்கு. हमारे सीमेंट के लिए जरूरी लाइमस्टोन मिलेगा. यहाँ जो लाइमस्टोन अवेलेबल है वो बेस्ट क्वालिटी का है. यहाँ से लाइमस्टोन निकालना शुरू करेंगे तो लगभग 50 से 60 सालों तक लगातार निकल 1 लाख crores வரைக்கும் कम से कम 10,000 करोड़ तक आराम से. ஒரு பாயிண்ட். गाँव के बारे में भैया को बताया भैया उस जगह पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है. नाम करा जाओ बॉम्बे में उस जगह पर वो क्या नाम बताया कडम्बन. वहाँ कडम्बन में कई सालों से चोरी रह रही है. लगभग 50 परिवार रहते हैं और जब तक वो लोग वहाँ है हम लोग वहाँ से एक छोटा सा सरकार ने उन्हें कई बार अप्रोच कर चुकी है. बहुत सारे ऑफर्स देने की कोशिश भी कर चुके हैं लेकिन उन्होंने कुछ भी लेने से साफ मना कर दिया. वहाँ इस वक्त कम से कम 400-500 लोग तो रहते हैं. हम क्या करें भैया? प्रोजेक्ट स्टार्ट कर. इतनी भयानक आवाजें क्यों निकालती? क्या झिंगुर, प्यार से बुलाऊं तो नाराज हो रहा है. मैं झिंगुर हूँ तो तू क्या मधुमक्खी है? नहीं,
मैं देख रही हूँ। ए, सुन, इतनी बार समझाया, मेरा पीछा मत किया कर, तेरी समझ में नहीं आता। तुम हाँ तो करो, पीछा छोड़ दूंगी, तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ चलूंगी। सुनना, बताना वो सांप क्या कर रहे हैं? सांप दिख रहे हैं तुझे? क्या कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा। ओए, बताने को कहा ना, बताना क्या कर रहे हैं? जो तो सोच रही है वही कर रहे हैं। Hey, सुनना। अच्छा हुआ उस दिन तुम मेरे हाथ नहीं लगे। क्यों रे, तुम दोनों ने मिलकर उस शेर को मारा था उस दिन। वो रेंजर तुम्हें हर बार छोड़ कैसे देता है? मैं घूर के राजू। देखो बच्चों, ये मुझे कैसे घूर के देख रहा, तो क्या बोलना चाहिए? हाथी के दांतों के साथ इन्हें जीप में डालो। ये क्या है साहब? आप यहाँ आए, इन्हें मारा और अब इन्हें उठाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। जंगल में पेड़ कटा पड़ा है, आप ही मरा पड़ा है। आपको कम से कम हमसे पूछताछ तो करनी चाहिए। मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है, जेल में डालिए गए थे। तो क्या करूं? तुझे इसके लिए मेडल दिलवा दूं? नहीं हटा तो हटो तुम। साहब, छोटा बच्चा है, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। अनजाने ने बोल दिया, पर आज सच आपके सामने है। इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है हमने। देखो बेटा, वो अधिकारी लोग हैं, इनसे इस तरह से बात नहीं करते। इनसे दुश्मनी ठीक नहीं है बेटा। गुड इवनिंग सर, ये है करबावन के डीएफ मिस्टर दिनेश राव, और ये है वहां के रेंजर करण। हेलो सर, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। बात कीजिए।
हेलो हेलो। सुनिए जी, हमारे घर में कोई 2 लोग आए थे, उन्होंने मेरे हाथों में चाबी थमा दी। बाहर आकर देखा हाथ नहीं, गाड़ी खड़ी थी जी। ये एक छोटा सा मेरे साथ कॉपरेट करते रहिए, ऐसे छोटे मोटे केस मिलते ही हैं। हमें करना क्या है? कदम भवन में जो लोग हैं उन सभी लोगों को बाहर से निकाल, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्हें बाहर पर भगा देंगे। उन लोगों को एक भी खरोच नहीं आना चाहिए, बिना किसी परेशानी के, बिना कुछ शोर मचाए तो बाहर ही छोड़कर नीचे आ जाना चाहिए। इतना सोचने की जरूरत नहीं है सर। उन लोगों का गांव जो है वो कई पहाड़ों के बीच है, उनके हाथ पांव तोड़कर फेंक देंगे और कोई पूछेगा कि जल्दबाजी मत कीजिए। हम लोग वहाँ पर खुदाई करने वाले हैं और वो भी बिना लाइसेंस के इल्लीगल। जैसा आप करने को कह रहे हैं, अगर हमने वैसा किया तो परिणाम जानते क्या हो सकता है? तो फिर हम क्या करें सर? बताता हूँ। दीदी मुझे भी दो ना। देखो दीदी, हम लोग इस बात की पंचायत करेंगे, तुम बस हाँ में हाँ मिलाती जाना और देखना कड़म्बा कैसे मानता है, बाकी हम देखेंगे। आओ मेरे साथ। सुन, उसने हम पर हाथ उठाया तो क्या करेंगे? अरे अपनी जान पहचानता है। ओ भाई कड़म्बा, यहाँ एक जरूरी बात करनी है। मैं देख लूंगा। देखो कदम्बा, ये लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, तो तुम भी मान जाओ ना। तुम भी ना, क्या नाटक कर रहे हो? उससे भी पूछो ये इससे शादी करेगा या नहीं। पंचायत का ये फैसला है, तो प्रति को मंगलसूत्र पहनाओ। और आप यहाँ इससे बात करने के लिए कभी मत कहना, इस बार इसे छोड़ देते हैं। छोटे छोटे बच्चों से ऐसा काम करवाएंगे, शर्म नहीं आती तुझे? ओह, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे किस बात पर शर्म आनी चाहिए, किस बात पर नहीं। अभी बोल देती हूँ, कान खोल कर सुन ले। तू एक दिन खुद तेरे सामने आकर मुझसे पूछेगा कि मुझसे शादी करोगी। याद रखना मेरी बात। अरे भाई जी, अरे बाप रे, इसे अंदर रख दीजिए भाई जी। क्यों? बहुत जोरदार औषधि है ये। उस दिन अनजाने में अपने घर ले गया था, 1 हफ्ते तक घर से बाहर ही नहीं निकल पाया। अब तो बीवी लात मारती है। अरे तो मुझे बताया भी नहीं, तू इसे क्यों ले गया है? सुनिए बैठ जी, आप तो बहुत जाने वाले बैठ है ना, हर चीज का इलाज है आपके पास। हाँ है, क्यों पूछ रही हो? कदम्बा से शर्त लगा कर आई हूँ। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिसे खाकर वो तुरंत मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो देता हूँ ना, ये लो, इसे अच्छे से पीस कर उसके खाने में मिला कर उसे दे दे। सारी जिंदगी तुम्हारे चरणों में पड़ा रहेगा वो। सच्ची? आप मेरी बात समझ गए। अरे भाई जी, ये औषधि उसे क्यों दे दी? अब वो मांग रही थी औषधि, तो दे दी उसे। खिलाने तो दे उसे, शादी नहीं, सीधे बच्चा ही होगा। बेटा कड़म्बा। हाँ बाबा। सुबह से कुछ खाया नहीं तुमने, ये खीर खा लो फिर काम करना। ठीक है, रख दीजिए। क्या भाई कड़म्बा, अकेले अकेले काम कर रहा है? हाँ तो घर पे एक ही काम करते करते टूट गया था यार, सोचा तेरे साथ मिलके कुछ काम कर लूं। तो बता ना क्या करूं? हैं? क्या हुआ?
सारी खीर पी के। ठीक है, मेरी मदद कर। अरे आज ना घर पे बहुत बड़ा काम पड़ा है। अरे इंतजार कर रही है। अरे चुप कर रहा। अरे घर जा रहा हूँ मैं, बहुत काम करना है मुझे। चुप कर तुम। अरे चुप कर रहा। तेरे पति से तुझे बचाना तो मेरा जैसे काम ही हो गया है। अभी क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में कहाँ से आ रहे हो? पहले उसे नीचे उतार। मेरी बात मान, अभी के अभी उसे नीचे उतार। ऐसे नहीं मानेगी। अरे कितने बच्चे पैदा करेगा? वैसे भी पूरी फौज मान रही है। उतार उसे। ठीक नहीं सामने से। मेरे बदमाश, ये तो पापी इंसान है। ए सुन, तू ऐसा ही करता रहा था। तू देखना एक ना एक दिन मैं तेरे खाने में जहर मिलाकर तुझे मार डालूंगी। अरे कब पीछा छोड़ेगी मेरा? आखिर तुम्हारा जवाब क्या है? बोलो, मुझसे शादी करोगे या नहीं? अगर मुझसे शादी करने से इनकार किया तो झरने से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तो कूद जा। मुझे साथ में लेकर क्यों कूदी? तो फिर तुम्हें क्या सोचा था मैं अकेली कूद जाऊंगी? अगर जीना है तो हम साथ में जिएंगे और मरना होगा तो भी साथ में मरेंगे। लड़की चल हट, ठीक है।
Encoded by BigForumMovies.net. अरे कहाँ चला गया यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कदम्बा, कदम्बा, कदम्बा। कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? तू कहाँ गया था बता? इससे अच्छा तो अपनी घरवाले के साथ घर पर ही रहता। घर पे कितना सारा काम था वही निपटा लेता। पता है तेरे घर का काम? लगता है सीआर को देखकर तेरा चेहरा पीला पड़ गया। अरे सियार से मुझे डर नहीं लगता, उसे तो मैं कच्चा जमा सकता हूँ। अच्छा। तुम लोगों ने आवाज देके सारा काम बिगाड़ दिया। क्या यार, भरोसा किया कर मुझ पर। ये एक और सियार आ गया। ये हाथ में क्या? मैंने नीचे गिराने को बोला तुझे, तो क्या? जंगल से बारिश में अपनी जान दांव पर लगाकर हम शहद लेकर आते हैं और तेरे जैसे ऑफिसर मेहनत किए बिना उसे छीन लेते हैं। ले अब चार से बैठकर। क्यों रे, बहुत चाहिए तुझे? पहाड़ी के लोगों को आप अक्सर परेशान करते हैं, उन लोगों के साथ मारपीट करते हैं। यहाँ के लोगों ने आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई, मुख्य रूप से आपके खिलाफ। ये सब क्या है सर? और सर नहीं, हाँ सर, लगता है मुझसे नाराज होकर किसी ने कंप्लेंट लिखाई और आप इसे लेकर यहाँ। क्यों सर, आप ट्रस्ट वालों को और कोई काम धंधा नहीं जो समाज सेवा के नाम पर एक ईमानदार ऑफिसर को परेशान कर? आपने जंगल के एक आदमी पर हाथ भी उठाया है। इस बात का कोई एविडेंस है? साहब, मेरे बेटे ने अनजाने में गलती कर दी, माफ कर दीजिए साहब, उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। ओए बेवकूफ, यहाँ क्यों आया है? बाहर निकल। बाहर निकालो। साहब, आप कहिए ना जरा मुझे, आप छोड़िए, हाँ बताइए, बताइए कहाँ है क्या बेटा? क्या किया उसके साथ? उसको अभी यहाँ पर बुलाइए, हमें ह्यूमन राइट्स कमीशन तक जाना पड़ेगा। सर, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, छोड़ दीजिए। जाओ उसे लेकर आओ। मारा है मेरे बेटे को। ये क्या है सर? जानवर की तरह पिटा है इस बेचारी को। आप लोगों में इंसानियत है कि नहीं? हेलो, इस पर हाथ उठाने का आपको किसने अधिकार दिया? खाकी वर्दी पहनने का
ये मतलब तो नहीं है। ठीक है, इसने गलती की और इसकी बुरी तरह मारेंगे। आप पूछ रहे थे ना क्या एविडेंस है, ये देखिए। हाँ, आप लोग और क्या चाहते हो? ये रेंजर मुझे ठीक नहीं लगता, नजर रखनी होगी इस पर। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप जैसे गांव के भोले लोगों की मदद करना ही हमारा काम है। आगे से इस रेंजर की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो हमें तुरंत बताएंगे। आपको कोई भी जरूरत पड़े आप हमें बुला सकते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, ये लीजिए, ये हमारा पता है। सुना तूने, कदम्बा को उन्होंने बहुत मारा है, बांध कर मारा है उसे। वो कहेंगे अगर हाथ खो देते क्या पता चलता मेरा कदम्बा कौन है। वो ठीक है, लेकिन एक बात बता मुझे, तेरे भैया और कदम्बा की तो बनती नहीं है, तो कदम्बा से तेरा भैया तेरी शादी कैसे करवाएगा बता। कदम्बा से शादी करने के लिए कदम्बा के यहाँ जाएंगे, मेरे भैया माने का नाम। अरे बाप रे, इसे तो चोट लगी है। हाँ चलो चलो, घर वाले को बुलाते हैं। चलो चलो। There was a septic due to water teeth which went inside the body. Now he's all right. अब कोई खतरा नहीं है। आधे घंटे में होश आ जाएगा तो खुद उठकर चला जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, ठीक समय पर आपने खबर कर दी। बॉटल घुसने से सेप्टिक हो गया था और जहर फैल गया था। अगर ऐसे ही छोड़ देते तो 2 दिनों में मर जाता। साहब, अक्सर लोग नीचे से आकर इन बेजुबान जानवरों का शिकार करते हैं। पहली बार नीचे से आकर किसी अफसर ने इस बेजुबान जानवर को जीवन दिया है। जान बचाने वाला भगवान समान होता है। आप भगवान है साहब। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। बोलो, आपने जैसा कहा था ट्रस्ट के लोगों को अंदर से गांव के लोगों को गुड। अब उन लोगों को पहाड़ी से नीचे उतारने का काम शुरू करें। एक छोटे से बक्से में डालकर इन्हें घर के सामने रखेंगे तो इसका बहुत उत्कृष्ट परिणाम आपको मिलेगा। एक छत्ती से आपको आमतौर पर 5 से 10 लीटर शहद मिल सकता है। बकवास है ये सब। सालों से हम जंगल से शहद लेकर आ रहे हैं, अब वो छोड़कर ये फालतू की चीज इस्तेमाल करें। I don't think he understands what we are trying to say. हम आपको ये बता रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं, सही बोल रहे हैं। गांव के लिए कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं। याद है जयंती दीदी के पति उस दिन शहद निकालने पेड़ पर चढ़े और नीचे गिरकर मार गए। क्या कर लिया हम लोगों ने? एकदम सही बोला बेटा, बता रहे हैं सुरक्षित है तो देखने में हर्ज क्या है। She is correct. क्यों भाई, सभी ने बोल दिया। ऐसे बोल रहे हो जैसे ये लोग कोई नए हैं। सालों से ये लोग ट्रस्ट चलाकर गाँव वालों की मदद कर रहे हैं। ये जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। साहब, आप जारी रखिए, हम वही करेंगे जो आप कहें। क्या बात कही आपने?
He's a born leader. क्या बात है, बहुत बढ़िया जमा है। अच्छा यार, ऐसा बोल रहे थे शायद वैसा ही बढ़िया जमा है। बढ़िया जमा है क्यों रे? हम जंगल से कुछ शहद निकालने जाते हैं, खाना और बाकी सब चीजें भी तो लेकर आते हैं। उन्होंने कहा तो सबने मान लिया। बेवकूफ कहीं। देख कल कितना बोल रहा था, आज उसी की बात लाइफ में सबसे आगे है। ये कैसे किया? चल वाह, ये ना यार, ये ना काका, देखा ना अमेज़न के शहद की ताकत, अमेजिंग, बहुत स्वादिष्ट है। हाजी साहब, हाँ मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन आपने जो बोला मैं समझ नहीं पाया था। साहब, हमारी टोली ने आज तक कभी इतने सारे पैसे नहीं देखे। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। हमारा ट्रस्ट आप लोगों के लिए अभी बहुत कुछ करेगा। आइए अंदर आइए। बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है। चलना पीछे की तरफ चलते हैं। झाड़ू मारूंगी मैं तेरे पीछे। माँ, घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही रहते हैं ना माँ, यहाँ बहुत सारे खिलौने हैं। ठीक है बेटा। अकेले कहाँ जा रहा है? हाँ हाँ बताता हूँ। क्या है ये बहुत नशे वाली है, बड़ा मजा आता है। हाँ वाली जगह पर सुरेश भाई ने दी थी मुझे, 1 हफ्ते से पी रहा हूँ, बहुत अच्छी है। पी ले पी ले। हाँ पी ले पी ले पी ले। और देना। कल रात को मेरी लुंगी छीन के कौन भागा था? चोरी है, मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा। और इतना याद रखो, अगर मुझे को मिल गया ना, मैं उसकी लुंगी फाड़ कर उसका मुंह फाड़ बनाऊंगा और उसके पेशाब पोछा करूंगा। देखिए सुन, क्या है रे? आइए खाइए आराम से। और Goats have come for sacrifice. बकरों को कभी अपनी बिरयानी खाते हुए देखा है क्या? सामने देखो सबसे बड़ा बकरा।
पहाड़ी के लोगों को नीचे उतारने का काम शुरू कर दिया है भैया। शुरू करने से क्या होगा? मजा तो तब आएगा जब काम खत्म होगा। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। ऐसी पत्थर की दीवार, कंक्रीट की जमीन और बाथरूम की सुविधा के साथ एक एक घर आप सबको मिलेगा। अरे वाह वाह वाह, कितना सुंदर है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, घर के पास स्कूल, हॉस्पिटल सब मिलेगा। आप लोग बहुत खुश रहेंगे। हाँ देखो तो, एक एक घर की कीमत 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए हम कहाँ से ला पाएंगे? नहीं, पैसे आपको नहीं देने हैं, इसका सारा खर्च हमारा ट्रस्ट उठाएगा। और हाँ, इस घर में टीवी, मिक्सर, ग्राइंडर, बिजली, गैस का चूल्हा सब कुछ मिलेगा। साहब ये सब हमारे लिए है। पहाड़ी पर मजबूत घर। हाँ, ऊपर नहीं, नीचे, पहाड़ी के नीचे। हम लोग पहाड़ी के नीचे क्यों जाएंगे? I told you, he's a born leader. क्या सर? अब ये सब क्या कह रहे हैं? एक जिंदा पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह बोलने की बात कर रहे हैं। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी साहब, आपको भगवान सोचा था। ये सब हम आपकी अच्छी नहीं कर रहे हैं। नीचे अच्छा घर मिलेगा, वहाँ रहकर बेहतरीन जिंदगी गुजारिए। यहाँ इस पहाड़ी पर आगे कौन सी सुविधा है? अगर यहाँ सुविधाएं नहीं तो क्या हो? उनके बिना भी जिंदगी बिताई जा सकती है, और तू नहीं समझेगा। तूने आकर 2 एहसान क्या कर दिए? तू जो कुछ बोलेगा मान। मेरी बात सुनो, अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, वो लोग आगे तरक्की करेंगे। हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कैसे मदद करेगा? हमें यहाँ से हटाकर हमारी जिंदगी हमसे छीनना मदद है। तुम लोगों ने मुझे जेल से निकलवाया और इन सब पेट पर की रोटी दी, इसीलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगर आज के बाद कभी इस पहाड़ी पर नजर आए तो तुम्हें वहीं गाड़ दूंगा। सर वो लोग बहुत गुस्से में आ गए। हमने बहुत कोशिश की, बट व्हाट हैपेंड इज नथिंग हैपेंड सर। आप रुकिए, हमने उन्हें लालच दिया मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। हमने सोचा उन्हें आसानी से बना लेंगे, लेकिन सॉरी सर, मुझे नहीं लगता कि वो लोग उस पहाड़ी को कभी छोड़ने को तैयार हैं। जानवरों के लिए वहां एक पहाड़ बना दे दो। बहुत अच्छा आइडिया है। नोटिस भेजने की तैयारी करो। सर, गवर्नमेंट को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुम बस काम शुरू करो। क्या है रे? तुम्हें मछली पसंद है इसलिए कड़म्बा ने मुझे देकर भेजा है। अपना ये गुस्सा मुझ पर मत दिखा, कड़म्बा पर दिखा। दीदी समझा दो इसे, मैं कौन हूँ। मेरे को बहुत भैया भैया रुक जाओ, भैया रुको तो, मेरी बात तो सुनो भैया। तो बता क्या कहा उसने? घर के लिए मछली भेजता हूँ। बहन होगी तेरी, मेरी नहीं। आज क्या दूंगा ज्यादा लोगों को। सभी लोग है ना? लगता तो है सर। तो नोटिस पढ़ना शुरू करें। ओके सर। तो सुनिए, पूर्व की पुलिवराय पहाड़ी से लेकर पश्चिम कड़क पहाड़ी तक, उत्तर बेटी मुरुजान पहाड़ी से लेकर
दक्षिण की पहाड़ी तक की जमीन को बाघों की शरण के लिए वहाँ पर पहाड़ बनाया जा रहा है। वहाँ बाघों की पहाड़ के मध्य आपकी टोली आ रही है, इसलिए आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। तो लिया सब लोगों ने, आज के बाद अगर कोई भी शकरकंद या शहद लेने जंगल की तरफ आया तो गोली मार दूंगा। गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तुम सब चुपचाप ये जगह खाली कर दो। नहीं करेंगे। क्या करोगे? यही पैदा हुए थे और यही मरेंगे। सर्दी गर्मी बरसात हमारे अच्छे और बुरे दिनों में हमें शरण दी है। इसी धरती माँ में हमारा यहाँ रहना माँ की कोख में रहने जैसा तुम हमें मौत नहीं कर सकते। ये जंगल हमारा, पहाड़ हमारे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरे दादा परदादा यही रहते, मेरे पिता आज भी यही खड़े, मेरी आने वाली पीढ़ी भी यही पैदा होगी। तुमसे जो कुछ भी मन पड़े वो कर ले। शराफत से उन लोगों को उस जगह से भगाने का ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट था सर, जो मुझे लगता है फेल हो गया। नोटिस के बाद भी वो वहां से नहीं थे, इसका मतलब वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। मुश्किल से 200 लोग होंगे सर, हाथ पैर तोड़कर सबको भगा देते। मैंने तो पहले ही दिन कहा था। क्या भाई, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हमें वहां से कैसे भगाए? हमारे पास जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको इकट्ठा करो। यूनिफॉर्म के साथ जितने भी हथियार हो सकते हैं उनके हाथों में दे दो। माता देवी, इस मिट्टी के लोग हैं हम पर जो भी मुश्किलें आए उनसे तुम्हें ही बचाना होगा माता।
Welcome, ladies and gentlemen.